Hello 8th class students, I hope all of you are fine. Students, this is my second video on our chapter 17, the Union Executives, and in this video I will discuss about the Vice President, the Prime Minister and the Council of Ministers. Firstly, the Vice President. Students, the Vice President of India is the second highest constitutional office in India after the President. So after the President, the second highest post in India is of the Vice President. Next is what are the qualifications are required to become the Vice President of India and how he or she is elected. First of all, to be a Vice President, a person must be a citizen of India, not be less than 35 years of age, not hold any office of profit, have all the qualifications required to be a member of Rajya Sabha. Students, here please note it one thing, that in the case of President, all these above qualifications are same except one, that is in the case of President have all the qualifications required to be a member of the Lok Sabha, but in case of Vice President it must be a Rajya Sabha, because Vice President is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. So it is a major difference between the for the qualifications between the President and the Vice President. Secondly, the Vice President is elected for a term of 5 years. The Electoral College. Now, students, you know it very well. President is also elected by Electoral College, and same Vice President is also elected by Electoral College. The Electoral College to elect a person to the office of Vice President consists of all the members of both the houses of Parliament. अब यहाँ पर देखो मेजर डिफरेंस क्या था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में. आपको यहाँ पे देखो वाइस प्रेसिडेंट में है ओनली जो मेंबर्स हैं ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं, दे बोथ इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट. बट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज में और क्या चीज एक्स्ट्रा ऐड थी, दैट इज द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ओके, तो प्रेसिडेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स भी ऐड होंगे, बट इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ओनली इट इज द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज के मेंबर्स होंगे यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. So students, the vice president perform the duties of the president in his or her absence. अब जब भी प्रेसिडेंट देखो एब्सेंट होगा तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, और एब्सेंट होगा मीन्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन सच एज ड्यू टू हिज डेथ. अगर मीन्स अगर उसकी डेथ होगी है प्रेसिडेंट की, या फिर उसने रिजाइन दे दिया है, इम्पीचमेंट से उसको रिमूव कर दिया गया है, और एनी अदर सिचुएशन, देन वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. Secondly, the Vice President is also the ex officio chairman of the Rajya Sabha. तो chairperson होता है राज्य सभा का ये. This is the second post with the Vice President. Students, next is about our Prime Minister. The Prime Minister of India is the head of the government. Students, President is the head of the state, but Prime Minister is head of the government and the leader of the executive wing of the government. जो भी executive wing है government की, उसका leader होता है ये. The powers that are normally vested in the president are actually exercised by the prime minister. अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो powers president के पास होती हैं, mainly उसको exercised means mainly वो powers होते तो वैसे president के पास है, means उनको perform कौन करता है, prime minister. means president is the nominal head, और main powers किसके पास होती है, real power are with the real head is the prime minister. मीन्स एक्चुअली में स्टूडेंट्स क्या है कि जो प्रेसिडेंट के पास जो भी पावर्स होती हैं, बट पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास, बट प्रेसिडेंट ऑलवेज एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन हिज और एडवाइस. तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही वर्क करेगा. द प्राइम मिनिस्टर्स पोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलिटिकल पोजिशन इन द कंट्री. तो सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन होती है, पोलिटिकल पोजिशन होती है कंट्री में ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. नाउ नेक्स्ट आर द क्वालिफिकेशंस. बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा. अब देखो ये लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है या फिर राज्यसभा का भी हो सकता है. बी अबाउट 25 years of age if he or she is a member of the लोकसभा. अब आपको पता है लोकसभा के मेंबर्स के लिए 25 years एज चाहिए होती है हमें, एंड फॉर द राज्यसभा मेंबर्स द पर्सन मस्ट हैव ऑफ 30 years एज. तो अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो 25 years एज कंपल्सरी है, और अगर राज्यसभा का मेंबर है देन 30 years. Not hold any office of profit under the government of India or the government of the any state. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर या फिर गवर्नमेंट की स्टेट के अंडर कोई भी ऑफिस होल्ड ना करता हो. अगर होल्ड करता है तो फर्स्ट उसको रिजाइन देना पड़ेगा, देन ही और शी में पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन.
नेक्स्ट स्टूडेंट अबाउट द इलेक्शन मीन्स हाउ द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड आफ्टर जनरल इलेक्शन। अब आपको पता है 5 ईयर्स के बाद हमारे कंट्री में इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो जब भी लोकसभा के इलेक्शन होंगे दैट आर कॉल्ड द जनरल इलेक्शंस। व्हेन द न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड, जब न्यू लोकसभा बन गई है, मेंबर्स उसके सभी इलेक्ट हो चुके हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी, जो लीडर है पार्टी का, हु गेट्स मेजोरिटी इन द लोकसभा, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिली है मेजोरिटी में, जिसके सबसे ज्यादा सीट्स है लोकसभा में, उस पार्टी के लीडर को अपॉइंट्स करेगा एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकेंडली, इन केस नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी, अब देखो किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, देखो यहाँ पर स्पेसिफिक होता है स्टूडेंट्स की, अगर मोर देन 50% अगर सपोज रिक्वायरमेंट है कि अगर 100 सीट्स है तो उसमें 51 सीट्स रिक्वायर्ड है एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अगर किसी पोलिटिकल पार्टी को नहीं मिलती है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, जो लीडर जिसको सबसे ज्यादा पार्टी के जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे उस पार्टी के लीडर को अपॉइंट कर देगा। और अलायंस, अलायंस मींस 2-3 पोलिटिकल पार्टीज जब मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाएंगी दैट इज कॉल्ड द अलायंस। तो जब भी जो अलायंस होगा उस पोलिटिकल पार्टी के लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर वो डिक्लेयर कर देगा। द फुल टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स होती है टर्म प्राइम मिनिस्टर की भी। हाउएवर द टर्म कैन एंड सूनर, ये टर्म पहले मीन्स बिफोर द टाइम पीरियड एंड हो सकती है इफ ही और शी लूजेज द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस पास हो जाएगा इन द लोकसभा, then president has to resign and he has to give the resign to the president, तो प्राइम मिनिस्टर किसको रिजाइन देगा अपना, in the writing to the president. Next are the functions of power of the prime minister. First of all, prime minister acts as a link between the people, the parliament and the president. तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक लिंक है बेटा between the people, the parliament and the president. He or she advises the president. अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को ऑन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और ड्यूटीज, कि किस वे से प्रेसिडेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा, उन चीजों में उन मैटर्स में एडवाइस प्रोवाइड करेगा प्राइम मिनिस्टर। एंड द प्रेसिडेंट इज ऑब्लिगेटेड टू फंक्शन अंडर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बाद प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस को ही फॉलो करना पड़ेगा एंड ही हैव टू परफॉर्म हिज फंक्शन अकॉर्डिंगली। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मीन जो भी मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के उसमें से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करेगा। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ही डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, देखो पोर्टफोलियोज आर द डिपार्टमेंट, जो मीन्स कौन सा मिनिस्टर कौन सा डिपार्टमेंट को होल्ड करेगा, वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा या फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर है या फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है, कि कौन सा पोर्टफोलियो होगा, सैनिटेशन का है, ड्रिंक वाटर का है, एजुकेशन मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर है। तो मैं डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के उनके बीच में भी एक एज ए लिंक काम करता है एंड ट्राई टू ओवरसीज अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ईच। तो सभी की जो भी फंक्शनिंग है मीन्स स्मूथली फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा हर एक डिपार्टमेंट में, उसको भी ये इसी के लीडरशिप के अंडर ही वो भी देखता है, उनके फंक्शंस को भी मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर है कैरी ऑन करता है। कैन डिमांड एन एक्सपेंशन ऑफ कैबिनेट और द रेजिग्नेशन ऑफ एनी मिनिस्टर। अब जो प्राइम मिनिस्टर होगा देखो वो क्या करेगा, या तो वो किसी मेंबर को और ऐड कर लेगा, कैबिनेट में अगर 20 मिनिस्टर्स हैं तो एक और मेंबर ऐड करके उस कैबिनेट को एक्सपैंड भी कर सकता है, या फिर वो किसी मेंबर से किसी भी कैबिनेट मेंबर से उसका रेजिग्नेशन भी डिमांड कर सकता है। ओके, ही कैन एक्सपेंड द कैबिनेट और डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ एनी मिनिस्टर। विथ रियल पावर कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको पता है जब रियल पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफी होंगी। द प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, तो लोगों के लिए वो आंसरेबल होगा, हम लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर आंसरेबल है फॉर हिज वेरियस पॉलिसीज, फॉर द सक्सेस और द फेलियर ऑफ हिज और गवर्नमेंट। उसकी गवर्नमेंट किस वे से वर्क कर रही है, दैट इज देन प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। Student, this is all about the Prime Minister. Next is about our Council of Ministers. After the Prime Minister is appointed by the government, he or she selects his or her Council of Ministers. तो उसके बाद क्या करेगा Prime Minister अपने Council of Ministers को select करेगा from among the members of the Parliament, and the Council of Ministers are appointed by the President of India. देखो select करेगा Prime Minister select करेगा देखो members को, अब उनको appoint कौन करेगा, President on the advice of the Prime Minister. There are 4 ranks of the Council of Ministers. तो Council of Ministers में 4 ranks ministers होते हैं. First of all, the Cabinet Ministers. Cabinet Ministers क्या होंगे?
मिनिस्टर्स होल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। तो ये आपको आगे गिवन है कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में, आई विल गिव यू इन डिटेल। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। सेकेंडली मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स हु डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट चार्ज। देखो अपने डिपार्टमेंट का उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, वो डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी डिपार्टमेंट एंड वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर वर्क करेंगे। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर वर्क करेंगे, मीन्स दे आर द सीनियर मिनिस्टर्स, दे आर द जूनियर मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर वर्क करेंगे एंड दे डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट चार्ज। एंड वन मोर थिंग इज हियर दैट दे डिड नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे वो कैबिनेट मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड जो भी मिनिस्टर्स होंगे, इमिग्रेशन के रिलेटेड, पब्लिक सर्विसेज के रिलेटेड, दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। नेक्स्ट इज द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। अब देखो यहाँ पर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं बट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर्स ऑफ चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर्स मीन्स दे टेक पार्ट इन द कैबिनेट मीटिंग्स। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे कैबिनेट मीटिंग्स में ये पार्टिसिपेट करेंगे। इनके पास अपना एक इंडिपेंडेंट अपना एक डिपार्टमेंट होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल उमा भारती जो है वो थी मिनिस्टर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, एंड शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डिपार्टमेंट। तो दीज आर द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। लास्ट इज द डिप्यूटी मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स हु वर्क अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंडर वर्क करेंगे with independent charge, they are called the deputy ministers. And the prime minister assigns each minister with a department or portfolio. तो prime minister जो है हर एक मिनिस्टर को अपना अपना एक डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। एंड द प्राइम मिनिस्टर में कॉल फॉर द रेजिग्नेशन की डिमांड कर सकते हैं किसी मिनिस्टर से एट एनी टाइम। एंड इन केस ऑफ रिफ्यूजल ही मे एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस द मिनिस्टर। अब जगह अगर वो मिनिस्टर रेजिग्नेशन नहीं देगा तब वो प्रेसिडेंट को एडवाइज कर सकता है टू डिसमिस द मिनिस्टर फ्रॉम हिज पोस्ट। लास्ट इज अवर द कैबिनेट। अब देखो कैबिनेट क्या होती है। द कैबिनेट इज द इनर सर्कल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनर सर्कल का मीन्स क्या होता है, क्लोज टू द सेंटर ऑफ पावर। जो पावर के सेंटर, पावर के जब सबसे क्लोज होंगे मीन्स सबसे ज्यादा पावर जिनके पास होती है, दे आर कॉल्ड द कैबिनेट। दे होल्ड द हाईएस्ट रैंक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे वो कौन लेगी, कैबिनेट लेगी। अब इसमें आपके कौन से मिनिस्टर्स आएंगे, लाइक एग्रीकल्चर है, फाइनेंस है, एजुकेशन है, कल्चर है, एनर्जी है। दीज आर कॉल्ड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज हेल्ड बाय द कैबिनेट एंड द कैबिनेट इज कलेक्टिव आंसरेबल टू द लोक सभा फॉर हिज फंक्शंस। द कैबिनेट कैन रिमेन इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द सपोर्ट और कॉन्फिडेंस ऑफ द लोक सभा। देखो जब तक लोक सभा में कॉन्फिडेंस रहेगा तब तक ये अपने सीट पर रहेंगे। इफ लोक सभा passes a vote of non-confidence against any of the minister, the whole of the council of ministers have to resign, and thus the council of ministers swim and sing together. Means swim means अगर बंद रहेंगे, इकट्ठे बंद रहेंगे, जब एक को भी रिजाइन देना पड़ेगा तब पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन देना पड़ेगा। इन दिस वे दे swim and sing together.